Hello, hi everyone. Welcome back to yet another video. As you know, before you start doing something, it is important that you come know about what is to be done and what is not to be done. Since we are focusing on the regular classes, today we will be discussing about the syllabus that is to be covered in class 9th and 10th both. To succeed, you need to know what you have to focus on and what you do not need to focus on. So overall, you need to know the do's and don'ts of the study materials and what is to be focused, keeping in mind the future you want to achieve. Today we will be discussing the syllabus that is being prescribed by the CBSE. So we will start. I am going to tell you how to proceed and download the syllabus first from the CBSE website. First, you have to go to get to the curriculum 2026 लैंग्वेज. आप यहाँ से लैंग्वेज जो भी आपको पढ़ना है वो आप यहाँ से लैंग्वेज से सिलेक्ट कर सकते थे. वी आर कंसर्न विथ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स वी विल बी ओपनिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट. इट हैज बीन डाउनलोडेड. हमारा सीबीएसई का सिलेबस है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स मैथमेटिक्स के सेकेंडरी लेवल पे क्लियरली डिफाइंड है. आपको अपने इसको स्टडी कर लेना होता है अपने अनुसार. देयर इज सम एंगेजमेंट, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. हम जो है सीधे सिलेबस वाले पार्ट पे आते हैं. दीज आर द करिकुलम गोल्स एंड कॉम्पिटेंसीज दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल. सबसे पहला करिकुलम गोल है कि यू शुड अंडरस्टैंड द numbers, ways of representing numbers, relationship among numbers and number sets, build deductive and inductive logic to prove theorems, numbers and their relations, discover and prove algebraic identity and model real life situation in the form of equations, analyze characteristics, properties and two-dimensional geometry shapes, जो कि आप उसमें ज्योमेट्री के अंदर में पढ़ने वाले हैं. करिकुलम goal fifth is calculate areas, surface area, volumes of solid objects. Next is data interpretation. Lastly, you have to perceive and appreciate axiomatic and deductive structure of mathematics. You will learn about Euclid's axioms and postulates, prove theorems and do different constructions. Building skills, visualization, optimization, representation and mathematical modeling. Mathematical modeling is basically providing a mathematical equations, forming mathematical equations based on the description of the problem. So we will be developing those also. There are all in all 11 curriculum goals that have been defined by the CBSE for the same. Coming to the build-up of the marks distribution, the first unit is named number system and it will carry 7 marks in the final examination. Algebra will consist of 4 different chapters: introduction to polynomials, sequence and series, exploring algebraic identities, linear equation in 2 variables, and it will have 20 marks. The marks are not equally distributed among the chapters. आपको chapters में ये marks ये नहीं कि 4 chapter है तो 20 marks आपको equally 4 नंबर के इससे 4 नंबर के इससे. ओवरऑल इस यूनिट में 20 नंबर के आएंगे. Some topics will be important that will be given more weightage.
some will be less important, so they will carry less weightage. Geometry, coordinate geometry is of 4 marks. ज्योमेट्री के अंदर में फिर से आपको 5 चैप्टर यहाँ देखने को मिल रहा है. इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, these are the basic of the geometry that you have studied. लाइन्स एंड एंगल्स, ये आप नीचे प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं. ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स, ट्रायंगल्स के बारे में भी आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा. यहाँ पे आपको बेसिकली फोकस करना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर. देन फोरगॉन्स दैट आर क्वाड्रिलेटरल्स, इसके बारे में भी आपने क्लास 8 में एक विस्तृत चैप्टर पढ़ा था. सर्कल्स के बारे में भी आपने इंट्रोडक्शन पढ़े. यहाँ पे कुछ सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ने. ओवरऑल ज्योमेट्री कैरीज 25 मार्क्स, जिसमें से कि 2 या 3 प्रूविंग स्टेटमेंट्स आते हैं, आपको प्रूफ आने चाहिए. मेंसुरेशन के अंदर में नेक्स्ट यूनिट में आपको 14 मार्क्स है, जिसमें आपको एरिया एंड पैरामीटर, जनरली एरिया एंड पैरामीटर, 2 डायमेंशनल 2D ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना होता है सरफेस के ऊपर, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये 3D ज्योमेट्री कहलाती है. सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, लाइन्स एंड एंगल्स एंड प्रोबेबिलिटी लास्ट ईयर के सिलेबस में नहीं होते थे, इस बार ये ऐड किए गए हैं आपके सिलेबस में. की कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नंबर सिस्टम. यहाँ पे 2 चीजें आपको डिफरेंट कैटेगराइजेशन दिखाना पड़ेगा. नंबर सिस्टम, अब हमारे पास चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन है कि हमको उन चैप्टर्स में किन किन चीजों पे फोकस करना है. नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन, ये पॉइंट्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे जब हम चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे, जब हम चैप्टर्स पढ़ने जाएंगे. दीज आर द कॉम्पिटेंसीज दैट यू हैव टू फोकस ऑन बेस्ड ऑन, आपने प्रीवियसली जो कॉम्पिटेंसीज के डिफिनेशंस पढ़े थे वहां से आपको कॉम्पिटेंसी देखनी है. आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेते हैं, यू शुड बी एबल टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली. ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए. क्या क्या कॉम्पिटेंसीज आपके अंदर में आना है कि आप रेशनल नंबर क्या होता है वो आप पहचान सकते हैं, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या है वो आप पहचान सकते हैं, कॉन्सेप्ट एंड डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है, कंप्यूट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को कंप्यूट डेसिमल में और डेसिमल को रेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर्स को पहचानना, इरेशनलिटी की प्रूफ रहेंगे, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल, जो आपने वैसा देखा होगा, कुछ इस तरह का स्पाइरल बनता जाता है. जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे ये लंबा होता जाता है, और आप इसी को हम ये बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल. आप देखो धीरे धीरे ये ऐसा स्पाइरल की तरह शेप लेता जाता है. तो इसको भी कंस्ट्रक्ट करना हम सीखेंगे. फिर नेक्स्ट आता है आपका अलजेब्रा. अलजेब्रा के अंदर में हमने पहला चैप्टर पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स. वी विल बी गोइंग ओवर ऑल दिस व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर. जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम फिर से एक बार और इसको देखेंगे कि किन किन टॉपिक्स को हमने कवर किया है, किन का अभी कवर करना रह गया है. सीक्वेंस एंड सीरीज, आपको एपी एंड जीपी दोनों ही पढ़ने हैं. तो जीपीज में भी बेसिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, आपको केवल विजुअलाइजेशन पे ध्यान देनी है. नेक्स्ट जो आता है आपका वो है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. आपने क्लास 8 में भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नाम से चैप्टर पढ़े थे. यहाँ पे भी आपको वही होगा, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन होगी. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आप एनसीईआरटी बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बस एक
स्टार्टिंग चैप्टर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया हुआ है, फिर आप ज्योमेट्री के अंदर में पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स के ऊपर जाएंगे, लाइन एंड एंगल्स के ऊपर जाएंगे, फिर ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे, लास्टली क्वाड्रिलेटरल से, फिर सर्कल से, सॉरी मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, और सबसे लास्ट में पेज है आपका, हाँ, दिस इज द क्वेश्चन पेपर सेटअप। आपको फाइनल एग्जाम में ये ध्यान रखना होता है, सीबीएसई पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके आप जो है नंबर ले आएंगे, या जो क्लास में टीचर ने करा दिए है उस पर नंबर ले आएंगे, तो आपको और ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग जो आपने डायरेक्ट थ्योरीज पढ़े हैं या क्लास में जो एक्सरसाइजेस किए हैं उस पे बस 43 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और वो उसकी वेटेज जो है 54% ऑफ द टोटल पेपर होता है। आपने जो पढ़ा है उसको कॉम्पिटेंसीज जो आपको बोलते हैं, तो कॉम्पिटेंसीज के नाम पे आपको 19 मार्क्स का मिलेगा जो कि 24% होता है, और लास्टली एप्लीकेशन बेस्ड होता है जो 18 मार्क्स का होता है, 22%। टोटल आपका 80 मार्क्स का रिटन पेपर होगा। मल्टीपल असेसमेंट ये स्कूल का पार्ट होता है, ये स्कूल वाले आपको समझा देंगे। वी विल बी कवरिंग दिस इन हियर। आपको जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स हैं वो है क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स फॉर एनसीईआरटी पब्लिकेशन, गाइडलाइंस फॉर मैथमेटिकल लैबोरेटरीज, ये सीबीएसई द्वारा लैब मैनुअल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपको एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकें, जिससे आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आए। ये लैब मैनुअल आपका प्रिस्क्राइब्ड है। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज टू बुक्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th एंड एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स फॉर क्लास 9। ये दो मस्ट बुक्स बुक्स हैं। इसके अलावा भी आपको जहां से भी प्रॉब्लम मिलता है आप उसको जितना ज्यादा, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इट विल बी इजियर फॉर यू टू राइट योर एग्जाम्स व्हेन यू हैव प्रैक्टिस मच। तो ये तो था आपका क्लास 9th का। तो मैंने ज्यादा डिटेल्स में आपको बात नहीं बताई है। जैसे जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वी विल बी फॉलोइंग द एनसीईआरटी सिलेबस टू द पॉइंट। आप अपने जो भी हम उस पे क्वेश्चंस करेंगे या जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। आपको जो भी उसमें बताना है क्वेश्चंस, आपको जहां कहीं से भी, मैं भी यहाँ पे आपको शेयर करूंगा, पीडीएफ आपको मिलेगा, या आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पलर सॉल्व कर सकते हैं, या और कहीं से भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड यू कैन आस्क द डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस with your friends. We will be continuing our next class from the first chapter of NCERT book. Thank you.